Hello everyone, welcome to my channel Maths with Sneha. So in this video we are going to see the examples of double integration without limit, which is the continuation of previous video. So let's directly start with an example. So example I have already written on the board, that is evaluate double integration of x into dx into dy over the region bounded by these two curves, and these two curves are what? Y equal to x square and y equal to x. So everyone know that this y equal to x square is a parabola symmetrical about y-axis, and y equal to x is what? A straight line passing through the origin. So I will write down that here. So this y equal to x square क्या represent कर रहा है? It is a parabola symmetrical about y-axis, and y equal to x is a straight line. Is a straight line passing through origin. So our first step will be we have to draw this region, or we have to draw these two curves, and we have to calculate the region of integration. Means we have to calculate the region bounded by these two curves. So let us draw these two curves here. So I will draw that two curves here. This is x-axis, this is y-axis, this is the point origin. So first curve is what? Y equal to x square, which is a parabola symmetrical about the y-axis. So it will be opening upward. So this is what your parabola, y is equal to x square. Then next is what? Y equal to x. It is a straight line passing through the origin and from first and third quadrant. So this is what your straight line y equal to x. Now the region bounded by these two curves means what? The common region formed by these two curves, and here we can easily observe that the region bounded by these two curves is lying in the first quadrant. जो भी first quadrant में ये जो छोटा सा जो region आपका आ रहा है, जो intersection करके दोनों भी curves का, वो हमारा क्या रहेगा? Region of integration. And over that region we have to calculate the limits of integration. So I will shade that region over here, and I will shade using this pen. So the shaded region is what? Our region of integration, and from this region we have to calculate what? The limits of integration. But now before calculating the limits of integration, we have to observe one thing. What? Ki in how many points these two curves are intersecting. So now here we can observe that these two curves are intersecting in 2 points. This one point and this is another point. So our first important task is what? We have to calculate the point of intersection. So everyone know that this is what the point origin, and everyone know the origin के coordinate क्या होते हैं? 0, 0. And this is, suppose I am taking a point A. So let us first calculate the point of intersections of A. And now this point of intersections of A we can calculate by solving these two equations. Now what two equations here we have? So now here I will write the point of intersections. Point of intersections. So now since this point of intersection we will calculate using these two equations, and these two equations are what? Y equal to x square, this is equation 1, and y is equal to x, this is equation 2. Now from these two equations what we can observe? Y equal to x square and y equal to x, either you can put this y equal to x value in equation 1 or vice versa. So by considering these two equations we'll have x square equal to x. Now solve this equation, and everyone know how to solve it. So it will be what? X square minus x will be equal to 0. What does that imply? Take x common, then in bracket it will be x minus 1 equal to 0. So from this we are getting a two values. What? X is equal to 0 and x is equal to 1. Since we have to find the coordinates of point A, which is in the first quadrant, so obviously there x will not be equal to 0. मतलब x इक्वल टू 0 ये कंडीशन तो वहां पे होगी ही नहीं, तो क्या आया फिर? सिर्फ x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमारा x का मतलब ये जो पॉइंट है उसका x का वैल्यू क्या आया? आपका 1 आया. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? y का वैल्यू. y का वैल्यू यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू इक्वेशंस. मींस पुट x इज इक्वल टू 1 इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 देयर, देन डायरेक्टली विल गेट व्हाट? y इज इक्वल टू 1. सो व्हाट डज दैट इंप्लाई? Y is equal to 1. So our point of intersections are what? Origin 0, 0 and point A 1, 1. Okay. Now after calculating the point of intersections, our next task will be to calculate the limits of integration. And again, to calculate the limits of integration, we'll use the strip concept. So as I told you in previous video, we will go first by vertical strip. So let me draw the vertical strip over this region. So let us take the vertical strip over the region.
सो आई ड्रॉ अ स्ट्रिप ओवर हियर, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ करी, वर्टिकल स्ट्रिप। सी अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो भी चलेगा, स्ट्रिप कौन सा लेना है वो आपकी चॉइस, आप कोई भी स्ट्रिप लेके लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगेन आई विल सजेस्ट दैट गो बाय द वर्टिकल स्ट्रिप बिकॉज उससे एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाता है। सो व्हेन आई टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप ओवर द रीजन, हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि इसका लोअर एंड एंड अपर एंड कहाँ पे टच होगा। तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ, मतलब सेम टाइप का एक स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। See, by taking a vertical strip, we have to observe or we have to calculate the two things. अगर आपने vertical strip लिया तो उससे order of integration क्या बनेगी, dy into dx। क्यों? Because vertical strip is what a parallel to y axis। अगर parallel to y axis अगर आप strip ले रहे हो तो first you will integrate with respect to y, that's why the order will be dy into dx, and from both end means from lower end and upper end of the strip we have to calculate the value of y in terms of the x। अभी वो वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे, सी अभी ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसका लोअर एंड कौन से कर्व पे टच कर रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसका लोअर एंड टच कर रहा है पैराबोला पे, तो पैराबोला पे अभी y की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर, तो लोअर एंड से आपका y का वैल्यू क्या आ गया, आपका एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी देखो अपर एंड कहाँ पे टच कर रहा है, अपर एंड टच कर रही है लाइन को, और लाइन पे y की वैल्यू क्या दी है, लाइन पे y की वैल्यू दी है x, तो फिर अपर एंड से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, x। सो देन हियर लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम, सी मैंने आपको क्या बोला था कि लोअर एंड से जो भी वैल्यू आएगा वो होगी आपकी लोअर लिमिट, अपर एंड से जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो होगा आपका अपर लिमिट। सो y का लिमिट होगा फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स, from x square to x। now let us calculate the limits of y, limits of x। हमें यहाँ पे y के लिमिट मिले, अभी हमें किसके लिमिट कैलकुलेट करने, x के लिमिट। अभी x के लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें देखो कि x का आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या है एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सो हमारे पास सिर्फ अभी दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसमें देखो कि x आपका कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, तो x आपका वैरी हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, therefore limits of x are from 0 to 1। okay, so this way how here we have calculated the limits of y and limits of x। now our next task will be what, we have to solve this double integration। so I will erase this part and I will do the integration part here now here। so see here we have calculated the limits of y and x, so let's assemble the integration, double integration। so I is equal to what, double integration of, we have to integrate the x function। now by taking the vertical strip हमारा order क्या बना, dy into dx, तो यहाँ पे आ गया dy into dx। since first we are integrating with respect to y, तो फिर जो भी आपका इनर लिमिट है उसके लिमिट रहेंगे आपके लिमिट ऑफ y, जो भी आपका आउटर लिमिट है उसके लिमिट रहेंगे आपके लिमिट ऑफ x। तो फिर यहाँ पे होगा आउटर लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 1, इनर लिमिट विल बी फ्रॉम x square to x। और इसके आगे अभी सबको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसके आगे क्या है कि सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। किसको इंटीग्रेट करना है, x को। जब भी हम x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, बिकॉज अपोजिट वेरिएबल व्हाइल डूइंग द इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव वी हैव टू ट्रीट एज अ कांस्टेंट। सो नाउ x विद रिस्पेक्ट टू y विल बी कांस्टेंट, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर x into y and the limit will be from where to where, x square to x and then dx। now replace what, y by both upper and lower limit। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। जब आप y को जब आप x से रिप्लेस करोगे तो फिर यहाँ पे होगा x into x, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, माइनस y को जब आप लोअर लिमिट से रिप्लेस करोगे तो फिर यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब एंड देन dx। नाउ डू दिस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3। सी वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, जब भी आप इंटीग्रेट करो तो फिर वहां पे आपको क्या करना है, जस्ट इंक्रीज द पावर बाई 1। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 4 and the limit will be from 0 to 1। now after putting the limit it will be what then, 1 by 3। सी x को अगर आपने 1 से रिप्लेस किया तो आएगा 1 by 3 माइनस x को अगर 1 से रिप्लेस किया तो आएगा 1 by 4। अभी जब आप x को जब लोअर लिमिट से रिप्लेस करोगे तो फिर वहां पे क्या मिलेगा आपको, -0। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इट विल बी व्हाट, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली। सो 4 minus 3 will be 1 divided by 12। so this is what the answer of the given integration। okay, so let's see the another example which I have written on the board, and the example is like
फाइंड लिमिट्स ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे जो भी अभी देखो क्वेश्चन का टाइप क्या है कि फाइंड द लिमिट्स, इवैल्यूएट नहीं बोला है। इवैल्यूएट जब हम बोलेंगे तो फिर वहां पे हमें डबल इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये मैंने एग्जांपल थोड़ा सा इजी बनाया क्या, कि जस्ट फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन, बिकॉज लिमिट फाइंड करना इंपॉर्टेंट टास्क है। आगे फिर आप वो डबल इंटीग्रेशन बाय, अगर आपको एक बार अगर ऑर्डर मिला तो फिर आगे फिर आप डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। अभी इस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि वी जस्ट हैव टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन एंड द रीजन में अभी जो भी कर्व्स इन्वॉल्व है वो कर्व्स क्या है कि y ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर एंड x ग्रेटर इक्वल 1। से अभी यहाँ पे ना जस्ट इक्वल टू कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है कि ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू कंडीशन। अभी वो जो इक्वल टू कंडीशन है उसका यूज करके हम कर्व ड्रॉ करेंगे। ग्रेटर देन वाला जो भी ये कंडीशन दिया है उस कंडीशन का यूज करके हम रीजन डिसाइड करेंगे कि क्या आपका रीजन आएगा। सो लेट अस सॉल्व द एग्जांपल। अभी यहाँ पे क्या दिया है कर्व्स, y is greater equal x square and x is greater equal 1। अभी रीजन ड्रॉ करने के लिए क्या है कि मैंने जैसे अभी आपको बोला कि रीजन ड्रॉ करने के लिए विल यूज इक्वल टू कंडीशन। अगर फर्स्ट कर्व में अगर हमने इक्वल टू कंडीशन लिया तो फिर वो क्या बनेगा, पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज व्हाट, अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। एंड x इक्वल टू 1 मतलब क्या, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,0 पॉइंट। सो लेट अस ड्रॉ द रीजन हियर। This is x-axis, this is y-axis, this is the origin. So now the first curve is what, y equal to x square, means it is a parabola opening upward. So this is y equal to x square. Next is what, x is equal to 1. So suppose I am taking here 1,0 point, say here, say 1,0 point, and x equal to 1 मतलब कि it is a straight line passing through 1,0 point and parallel to y-axis. So the line will be like this. अब ये दोनों भी कर्व्स का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो हमारा रीजन होगा, राइट। अभी वो रीजन डिसाइड करने के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी है ग्रेटर देन, उसका हम यूज करेंगे। अभी देखो जो भी ये इक्वेशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या बोला है कि x का वैल्यू खाली 1 होके नहीं चलेगा, x का वैल्यू 1 से ज्यादा भी होना चाहिए। तो 1 से ज्यादा वाला वैल्यू मतलब कहाँ पे, सो इस साइड। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा। ये वाला जो ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है छोटा सा, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज अगर आपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अगर लिया तो यहाँ पे फिर x का वैल्यू आपका लेस देन 1 होगा, तो फिर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। नाउ टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यहाँ पे क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन 1, इसलिए आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा। नाउ आई विल शेड दैट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ सिंस वी हैव सीन दैट कि ये पार्ट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे x का वैल्यू अगर हमने ये पार्ट लिया तो यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, इसलिए फिर ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। अभी किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आपका वेरी हो रहा है ऐसा, तो y का वैल्यू वहां से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा। यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या होगा कि लेस देन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इसलिए ये भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये भी आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसलिए यही आपका जो अनबाउंडेड रीजन है वो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अभी एक बार अगर आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिला तो नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो लेट अस कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। सो नाउ हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट these two curves are intersecting only in one point, and that point is here. So let us calculate its point of intersections. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं, उसमें क्या करना है कि हमें जस्ट जो भी दो इक्वेशंस दिए हैं उनको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे दो इक्वेशंस क्या दिए, सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस अभी यहाँ पे दो इक्वेशंस क्या दिए, अभी हम इक्वेशन मतलब हम इक्वल टू वाला कंडीशन लेंगे, राइट। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1। अभी x इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन में डाल दो। अगर आपने देखो यहाँ पे क्या है कि x इज इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू हो गया 1। अभी x इक्वल टू 1 एक फर्स्ट इक्वेशन में डालो तो फिर आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, फिर 1,1 बना, राइट। Now let's calculate the limits of integration, and to calculate that limits of integration we'll take the horizontal strip over the region. So let me draw the horizontal strip here, and see horizontal strip मतलब क्या है कि strip parallel to x axis.
तो अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया देन वो स्ट्रिप हम बेंड नहीं करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मतलब वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगा और वो हमारे रीजन पे ऐसे मूव होगा, राइट। अभी अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर रीजन पे मूव हो रहा है तो फिर वो मूव होगा इन द डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। अभी मैं एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनती है। सी हॉरिजॉन्टल मतलब इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फर्स्ट आएगा आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन बचा कौन, dy। Okay, so by taking horizontal strip, the order of the integration will be dx into dy. Since it is parallel to x, so from both end of the strip we will calculate the value of x. अभी वो वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे वर्टिकल में करा था सेम, हम यहाँ पे क्या करने की दोनों भी एंड ऑफ द स्ट्रिप हमें देखने की कहाँ पे टच कर रहे हैं। अभी देखो ये लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिप इज टचिंग टू वन कर्व एंड दैट इज अ लाइन। तो अभी लाइन पे x का वैल्यू कितना दिया है, मैंने यहाँ पे ये लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 1। सी लेफ्ट हैंड इज टचिंग टू दिस लाइन एंड ऑन दिस लाइन और ओवर दिस लाइन x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू दिया है 1। तो फिर यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी देखो कि राइट हैंड ऑफ द स्ट्रिप कहाँ पे टच कर रहा है, अभी राइट हैंड ऑफ द स्ट्रिप टच कर रहा है पैराबोला पे। पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्यों बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब कि फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों भी एंड से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो अभी राइट हैंड आपका टच हो रहा है पैराबोला पे, पैराबोला का इक्वेशन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या होगी, प्लस एंड माइनस √5, क्या होगी, प्लस एंड माइनस √5। बट सिंस वी आर इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे x एंड y, तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू फिर हम क्या लेंगे, x का वैल्यू हम लेंगे √5, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ √5। तो फिर यहाँ पे x की लिमिट क्या बनी, फिर लिमिट्स ऑफ x आर फ्रॉम, सी यहाँ पे भी सेम, लेफ्ट हैंड से जो भी वैल्यू आएगा तो वो होगा आपका लोअर लिमिट, राइट हैंड से जो भी वैल्यू आएगा वो होगा आपका अपर लिमिट। तो फिर यहाँ पे x विल वैरी फ्रॉम 1 टू √y। अभी हमें कैलकुलेट करना है लिमिट्स ऑफ y। सो लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम, देखो अभी y के लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना है कि ओवर दिस रीजन आपका y कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है। तो ओवर दिस रीजन मतलब है कि ये रीजन आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अभी यहाँ से आपका y वेरी होगा ऐसे वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है मतलब y का लोवेस्ट लिमिट क्या होगा आपका 1 और अपर लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। सो y विल वेरी फ्रॉम व्हाट, 1 टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ असेंबल द इंटीग्रेशन। तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन विल बी, आई विल राइट डाउन दिस हियर, इंटीग्रेशन विल बी i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अभी हमें इंटीग्रेशन में सिर्फ लिमिट्स कैलकुलेट करने, बिकॉज अंदर का फंक्शन है जनरल फंक्शन दिया है f ऑफ x, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बट बाय टेकिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑर्डर क्या बनी इंटीग्रेशन की, dx इंटू dy मतलब कि फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी आपका इनर इंटीग्रेशन है उसके लिमिट रहेंगे लिमिट्स ऑफ x एंड विच आर फ्रॉम 1 टू √y, and outer के रहेंगे आपके limits of y which is from 1 to infinity. So this way how we have calculated the limits of double integration. So we will end our video here. So if you find this video helpful to you, then please like it, subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you.